سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، آج میں نے صوبائی اسمبلی میں یک نکاتی ایجنڈے پہ بات کی ہے اور وہ صرف فلسطین ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کہ جو بچے ایریل بومبنگ میں شہید ہوئے، جو نمازی مسجد اقصی کے اندر شہید ہوئے، جو عورتیں شہید ہوئیں، جس طرح بمباری کی گئی اندھا دھند، 52,000 لوگ فلسطینی بے گھر ہو گئے، ہزاروں زخمی ہوئے، اور یہ ظلم و بربریت کی داستان ہم نے یکم رمضان کو بھی دیکھی جب مسجد اقصی میں اذان بند کی گئی، اور 27ویں رمضان لیلۃ القدر والے دن مسجد اقصی میں دھاوا بولا گیا۔ تو عید پہ میں نے کہا کہ لوگ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدتے ہیں، وہاں پہ ماؤں نے اپنے بچوں کے لیے کفن خریدے۔ تو یہ جو گھاؤ ہے مسلح امت کے دل پہ اور انسانیت کے لیے ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور جب فلسطین کا ذکر آتا ہے تو مقبوضہ کشمیر کا ذکر بھی آتا ہے، جس کو جیل بنا دیا گیا وہاں کے باسیوں کے لیے۔ اشرف صحرائی کسٹڈی میں فوت ہو گئے، ان کے بیٹے جنید صحرائی، ان کا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی۔ میر واعظ عمر فاروق صاحب، محترمہ آسیہ اندرابی صاحبہ، شبیر شاہ صاحب، علی گیلانی صاحب، میر واعظ عمر فاروق صاحب، ہم سب ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور اقوام عالم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان جب جب فلسطین میں اور کشمیر میں بربریت ہوگی، ہم یک زبان ہو کر اپنے کشمیری بھائیوں اور فلسطین بھائیوں کے ساتھ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن یہ بربریت کا سلسلہ اب رکنا چاہیے، اور میں سپورٹ کرتا ہوں جو طیب اردغان صاحب نے بات کی ہے کہ کوئی جوائنٹ پروٹیکشن فورس بننی چاہیے، کہ یہ بار بار، اور پھر آپ دیکھیں کہ رمضان شریف کے مہینے کا انتخاب اور ظلم جبر نہتے فلسطینیوں پر، اس کے روک تھام کے لیے ایک لانگ ٹرم بندوبست ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے میں نے کہا ایوان میں، آج بھی میں نے کہا کہ پاکستان میں آج سیاسی پولرائزیشن انتہا درجے کو پہنچ چکی ہے، چاہے وہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کا نفاذ ہو، چاہے وہ فلسطین میں ظلم و بربریت کی داستان نقل کی جائے رمضان شریف کے مہینے میں۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بیٹھنے کے لیے ان دو کوز کے لیے بھی ہمیں اپنا جو ہے نا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ قوم دیکھ رہی ہے، میں آج سیاسی بات میں نے نہ اندر کی ہے نہ میں باہر کروں گا، لیکن من حیث القوم ایک ممبر کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ یہ جو انتشار ہے، پولرائزیشن ہے، اس کو کم کیا جائے، تاکہ ہم نیشنل ایشوز پر اور ہمارے بھائیوں پہ جب قیامت ڈھاتے ہیں ظالم لوگ، تو کم از کم آواز تو یک زبان ہو کر بلند کریں۔ تو یہ 70 سال کی جو ان کی جدوجہد ہے، فلسطینیوں کی، کشمیر کی جدوجہد ہے، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ یہ جو امن ہے یہ دیر پا ہو، اور اس کا ایک مشکل حل جو ہے
मुस्लिम दुनिया बैठकर सोचे और उसको इम्प्लीमेंट करे। बहुत शुक्रिया। मियां साहब ये बताएं कि आपने पोलराइजेशन कम करने की बात, क्या ये पोलराइजेशन की जो कमी है सिर्फ एक दिन के लिए मुख्तस होगी जिस दिन को दिन मनाना होगा, या फिर बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में अपोजिशन और हुकूमत मिलकर इस पोलराइजेशन को कम करने की कोई प्रैक्टिकल एफर्ट भी करेंगी? मेरा ख्याल है कि जो मुतफ़क़ा करारदाद कौमी असम्बली में और अपना सूबाई असम्बली में पास हुई है, मैं इसी बात को, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं और कौम के लिए छोड़ जाता हूं कि आज जिस दौरान पे पाकिस्तान है, मैं इज्तिमाई बात कर रहा हूं, चाहे वो इकॉनमी है, हमारे इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं, अफगानिस्तान का मामला है, बेरोजगारी है, इन सब मामलात पर अगर यकसूई के साथ एक कौमी लाअमल अख्तियार नहीं किया जाएगा तो हम अपनी आने वाले नस्लों के सामने भी शर्मिंदा होंगे और उस कायद के सामने भी शर्मिंदा होंगे और उन हमारे अपने आबाओ अजदाद के सामने शर्मिंदा होंगे जिन्होंने कुर्बानी देकर पाकिस्तान बनाया। और मैं कोई अपना जो है ना वो लगी लुकती बात नहीं कर रहा, कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा। आज पाकिस्तान उस दुराए पे खड़ा है कि हमें मिनहासिल कौम बुनियादी फैसले करने हैं कि इस पाकिस्तान को आगे जाना है, जो पहाड़ जैसे मसाइल हमारा सामना कर रहे हैं उनका हल तलाश करना है, या आपस में लड़ लड़कर इस कौम को और कमजोर करना है। और जो कौमें आपस में लड़ती हैं वो उम्मत मुसलमान के मसाइल के लिए दुनिया से नहीं लड़ सकती हैं, इस बात का हमें इदराक होना चाहिए। मियां साहब ये फरमा दें, पंजाब के अंदर आप पंजाब के अपोजिशन लीडर हैं, हाउस के अंदर अपोजिशन लीडर हैं, इस वक्त पंजाब के अंदर सियासी हलचल है। जहांगीर खान तरीन ने बाकायदा तौर पे अपने ग्रुप का ऐलान किया है, और क्या आप समझते हैं कि उनके साथ राब्ते में है मुस्लिम नवाज? और दूसरा ये बता दें कि अगर कोई हलचल होती है, पहले भी आपको मौका मिला था जब इलेक्शन हुआ था, उस वक्त भी आपकी सीटें ज्यादा थी, इस वक्त भी जो सूरत हाल चल रही है वो इस तरफ जा रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? हमने मियां साहब इसमें ये ऐड कर लें कि आप समझते हैं कि जो राणा साहब ने बात की उन मसाइल को देखते हुए उनका हल इलेक्शन है, या आप इसी सिस्टम के अंदर एक गवर्नमेंट फॉर्म देना चाहेंगे? ऐड करते हैं हमने 3 साल, कौन नहीं है जो जेलों की हवा खा के नहीं आया। पौने 2 साल बाद भी मैंने आज हाउस में कहा, मैंने कहा इस हाउस का आज जो फिजा है वो मैं तल्ख नहीं करूंगा, मेरे पास बहुत बातें करने के लिए। आज भी हमने 3 साल तमाम तर इंतकाम को बर्दाश्त किया, एक जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा किया, इश्यूज पर बात की। तो ये जो आपने बात की है जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की, मैं सीधी बात ही कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि ताल्लुक नहीं है। हम चाहते हैं कि आज जो इस सूबे का हाल है, जहां आज पूरे पाकिस्तान में जो मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, बेरोजगारी है, उसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये सियासी जोड़ तोड़, हुकूमत गिरेगी, हुकूमत बनेगी, इसकी सीटें ज्यादा है, ये बातें पीछे रह गई हैं। पाकिस्तान बसीते कौम चैलेंज का सामना कर रहा है, और अगर हमने बुनियादी फैसले ठीक ना किए, मैं तमाम स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूं, तमाम सियासी जमातों की बात कर रहा हूं, उस गरीब रेहड़ी बान से पूछें जो सारा दिन इस चाहती धूप में रेहड़ी लगाता है और फिर भी अपनी माँ की दवाइयां पूरी नहीं कर सकता, अपने बच्चों की रोटी पूरी नहीं कर सकता। मियां साहब ये बताइएगा आपने क्या फैसला? हाँ जी, और दूसरा ये बता दें क्या मैं ये भी बता दूं। अच्छा मियां साहब एस्टेब्लिशमेंट से आपकी सुलह हो चुकी है या नहीं? और इसका फोर्स है हमारी सुलह हो चुकी इसका है, इसका का नतीजा आप और शहबाज देखें, क्लियर कर दें कि उसी वजह से आप बाहर आए हैं, डील का नतीजा है या कुछ और है? ये तो आपने आज तकरीर कर दी है, आपकी तकरीर के बाद मेरी बात का फायदा नहीं है। आखिरी बात यह है कि अपना जो है ना, मैं ये समझता हूं, और आने वाले दिनों में मैं आपसे बात करूंगा, सियासी बात करूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज एक पाकिस्तानी अपने मसाइल का हल चाहता है, और ये सूरत हाल ज्यादा देर ऐसे नहीं रह सकती। अगर हमने हालात का अदराक ना किया, इन मसाइल के आगे बंद ना बांधा, तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उनकी मदद करता हूं जो अपनी मदद करते हैं। तो इसलिए अल्लाह से दुआ है कि आज के दिन जो हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, जो मुत्तहिद हैं, इसी तरह पाकिस्तान के मसाइल के लिए मुत्तहिद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हाँ, आखिरी बात ये है,
मौजूदा ख्वाजा साहब बस करो, आखिरी सवाल। आखिरी बात का जवाब जो है ना ख्वाजा साहब, कि ये फैसला अवाम करेंगे, और मैं ये सियासी तौर पे समझता हूँ कि मसाइल का हल जो है ना वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। बहुत अच्छे।